So only 1.5 months is left for NEET. So at this point in time, I assume that most of you must have already read everything. Since you are watching this video, maybe you are not getting your desired score in your mock test, or like you are getting good score, but you really want to improve your rank. Or thirdly, it could be like some of you might be stuck in the borderline zone where few correct answer can take you towards your dream of becoming a doctor, and few incorrect question can cost you literally an entire year. In this video, I'm going to share top 5 strategies that will help you to boost your score in these last 1.5 months. So once you complete your, and trust me, once you complete your preparation, these last 1 to 2 months are most important in terms of boosting your score further. Hello everyone, I am Dr. Ritik Dugar. I have completed my MBBS from Grand Government Medical College, Mumbai. So I gave my NEET exam in 2017 and I got an All India rank of 998. I know a lot have changed in terms of syllabus since then, but the basic crux and the basic strategy remains the same. So I gave my NEET exam with my 12th boards. So first thing I would like to say to them is do not waste a lot of time for your board exams. Rather prepare for your boards in such a way that at least you have a complete revision of your 12th syllabus. For example, I revised entire chemistry and biology before their respective board exams. Like I did their NCERT completely, which helped me to score good enough marks in boards. And I also read my coaching institute notes. So yeah, prepare accordingly that it will help you boost your score in NEET. And trust me, reading or NEET material are sufficient for board exam. Like you do not need to go out of your way to solve previous year question or practice writing the answer. You do not need to do that. And at the end of the day, it does not matter because once you clear your NEET, nobody is going to ask you your board percentage. Second important strategy is solve mock papers. Like trust me, आप जितना भी mock paper solve करो वो कम है. Especially NEET UG के preparation के दौरान, at least you should give 2 to 3 tests every week because सिलेबस सिर्फ रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज एट दिस पॉइंट यू नीड टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस, योर सिली मिस्टेक्स, द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट्स विच यू आर लैगिंग, एंड वो तभी बाहर आएंगे जब आप टेस्ट दोगे एंड यू विल लाइक कम अक्रॉस दोज मिस्टेक्स एंड टेक देम सीरियसली टू इम्प्रूव देम. सो गिविंग टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम रिवाइज करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में वो टॉपिक हमें लगता जाता है कि हमें समझ में आ गया, बट उसके जब रैंडमली उसके एप्लीकेशंस होते हैं तो वो मे बी हम नहीं कर पाते क्वेश्चन में, एंड दैट थिंग कैन ओनली बी ओवरकम बाय गिविंग टेस्ट अगेन एंड अगेन, जहाँ पर रैंडमली किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स. Make sure you give as many mock tests as you can, and not just give mock tests, you have to analyze mock tests. Like you have to take mock tests very serious. It should affect you in a way that कि आप अपने आप से पूछो ये गलती मैंने कैसे की, and like आप उसको improve करो कि वो गलती दोबारा. For example, my 11th was little average, though I was very sincere in 12th. So but मेरे 11th के topics स्ट्रॉन्ग इसी तरीके से हुए थे. लाइक जो भी टेस्ट में गलती होते थे आई यूज्ड टू बी लाइक अरे ये कैसे गलत हुआ, एंड देन आई यूज्ड टू लर्न दैट रेट्रोस्पेक्टिवली. सो ओवर द टाइम लाइक जितने भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट जो वीक थे 11th के, जैसे क्वेश्चंस गलत होते थे, उन कॉन्सेप्ट्स को करते करते सारे स्ट्रॉन्ग हो गए. सिली मिस्टेक्स भी है, वो आप ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर में देख के कि हाँ ये तो सिली मिस्टेक था अगली बार नहीं होगा. You have to recognize your silly mistakes also because especially in exam like NEET UG, वहाँ पर silly mistakes examiner जो आपसे silly mistake करवाना चाहता है उसके भी pattern है, so which could be reduced by practicing. And third important strategy is bio NCERT. At this point biology के लिए कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर कोई टेस्ट हो भी रहा है आपके कोचिंग्स के, या अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर किसी का अपने टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन कर रखा है, तो ऑफ कोर्स यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस which you have not read already. But if you have read your NCERT completely from line to line, like wholeheartedly, and plus you can use your classroom notes if you have it, because वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. So बायो में आपने ऑलरेडी जो पढ़ रखा आप उसको ही रिवाइज करें because the precision in bio is very important. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनका जो सिलेबस और वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, make sure you like clear every single concept for those topics. ठीक है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है. रहता लाइक आई डिड दिस मिस्टेक, लाइक मेरी बहुत ख़राब आदत थी दैट मुझे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पसंद नहीं था. सो व्हाट आई डिड दैट वंस आई कंप्लीटेड माय मॉड्यूल और वो टेस्ट पेपर्स वगैरह, तो मैं कुछ और ही सॉल्व करने लग जाता था फिजिक्स के, कुछ नए बुक्स, कुछ और नए कॉन्सेप्ट, बट वैसा कुछ आया नहीं था एग्जाम के अंदर. रादर देन मेरे जो सिंपल क्वेश्चंस थे जो फिजिक्स के बिगनर बॉक्स में थे या मॉड्यूल में थे वो गलत हुए, रादर देन जो एडवांस क्वेश्चन जो गलत होने चाहिए थे. सो आई वुड से कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
जिनका वेटेज ज़्यादा है, आप देख, एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बता ही देता है कि कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप एनालाइज कर सकते हैं किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो मेक श्योर जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं प्रीवियसली उनके कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर, ठीक है. नॉट जस्ट कि आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कर सकते हो, बट उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. सो दैट शुड बी द टारगेट, एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज यू कैन. स्पेशली इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. लाइक मेक श्योर दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन फॉर ईच फार्मूला, लाइक वो मोलारिटी से जो शुरू होता है, जो काफ़ी, क्योंकि एग्जाम डे पे अगर आपने रिसेंटली कुछ टच नहीं किया होगा ना फार्मूला, तो यू गेट. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपके नोट सफिशिएंट है. अगर आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. अगर आप उससे भी रिवाइज कर सकते, जैसा कि मैंने कहा था 12th का तो मैंने केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी से ही रिवाइज किया था 12th बोर्ड्स के टाइम पे, सो नीट के लिए साथ में हो गया था. बट 11th के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सो मैंने खाली क्लास नोट से ही रिवाइज किया. मतलब थिंग इज दैट कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ अ लॉट टू डू विथ मेमोरी. सो मेक श्योर कि आप जिस सोर्स को ऑलरेडी यूज़ करते आए हो उसको ही करो. लास्ट ऑलरेडी आप पढ़ते हो अपने हैंड रिटन नोट से, और कई बार एक ही जगह से मल्टी बार, आपको वो स्पेशल मेमोरी हो जाती है उस चीज़ की. सो स्टिक टू दैट. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे काम, रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड. लाइक आई नो इट साउंड्स लाइक इसकी डायरेक्टली एग्जाम से क्या लेना देना है, बट ट्रस्ट मी, लाइक it is very important to stay calm on your exam. So I used to fill my OMR during my मतलब regular test in a very calm manner, like very chill manner, कि ठीक है फटाफट पढ़ लिया. But पता नहीं उस दिन I tried over hard to not make a mistake in OMR. So like I was constantly checking after finishing three bubbles, after finishing 3 question, I was constantly checking कि सही भरा नहीं भरा. And पता नहीं कहीं तो एक question छोड़ के मुझे 3 भरना था, and मैंने वहीं से 3 भर दिया. So I made that mistake. Like that was so बैड. लाइक आई नो, मतलब हालांकि ज़्यादा कुछ मतलब इफेक्ट नहीं हुआ. हालांकि आई गॉट 998 रैंक एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया. सो आई मूव्ड ऑन, बिकॉज द डे ऑफ एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लास्ट में हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि नहीं हुआ तो क्या, कि दैट वी एंड अप वेरी एंशियस एंड लाइक द टेंड टू लाइक पैनिक बिफोर एग्जाम, इन एग्जाम, और कई बार काफ़ी सिली मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं. सो स्टे काम. ऑफ कोर्स लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन think that it is the most important exam, I have to give my 100%, but on the day of the exam, just try to give your best, like and treat that exam like as if it is some another mock test of your coaching institute, rather than like panicking a lot about every question on that day. Like ऐसा भी होता है, क्योंकि हम नॉर्मली हमें लगता है कि ठीक है ये नहीं आ रहा है, सो इट डजंट अफेक्ट अस. बट एग्जाम के डे पे अगर 2-3 क्वेश्चन हमें लगातार नहीं आते, तो वी टेंड टू लाइक वी स्टार्ट पैनिकिंग एंड हमारा कॉन्फिडेंस हम खराब कर लेते हैं. सो जस्ट यूजुअली आई एम द गाय वुड से कि 8 घंटा पढ़ने की जरूरत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट सिंस ये लास्ट मोमेंट है, लाइक वो सही है अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो. ड्यूरिंग प्रिपरेशन 8 आवर्स इज सफिशिएंट, बट लास्ट एग्जाम के 1-2 महीने पहले यू हैव टू पुश योर सेल्फ. ट्राई गिविंग योर 100%. Like that can be different for different people. Like some people can give their 100% in 10 hours or 12 hours to 14 hours. Whichever is your best, just try reaching there. At least on the day of exam, you will have that satisfaction that you gave your 100%. And wish you all the very best. Like I hope you get your dream medical college and become a doctor soon. So wish you all the very best. And if you like my video, do like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching.